ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، خلیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، کلام کیا ہے، کلیم اللہ کہا ہے۔ فما اوتیت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ان سوالوں کا جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ نبوت میں بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے صحابہ کے سوالوں کا جواب میں خدا دیتا ہوں کہ آدم کو، ابراہیم کو خلیل اللہ میں نے بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ میں نے بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ میں نے بنایا ہے، یہ ساری شان فضیلتیں عطا کرنے والا تو میں ہوں۔ تو سوال مجھ سے کیا جانا ہے کہ اپنے حبیب کو تو نے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، لیکن اے محبوب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا، وہ خلیل اللہ ہے، تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا، آپ حبیب اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا ہے، تو اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برسوں پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا ہے، کلام عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے کلام تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور تو کیا چوتھا آسمان تو کیا مکان و لا مکان سے اوپر صرف کلام ہی نہیں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلتیں، تمام انبیاء سے زیادہ معجزات، تمام انبیاء سے زیادہ کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ بلکہ معجزات پہ تو یہ ہے کہ کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 10 معجزے، تو کسی کو کئی معجزے، لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، دوسروں کو معجزے دے کے بھیجا ہے۔ جب باری آئی ہمارے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ دے کر نہیں، معجزہ بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی ذات ہی معجزہ، ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں اس دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہونا ثابت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے معجزہ بن کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے معجزہ معراج، جن کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر یہ 3 قسمیں دہرا دیتا ہوں۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، معراج کا یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے۔
सिदरतुल मुंतहा से लेके दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, अल्लाह ताला की ज़ात तक का सफ़र, मेराज का ये सफ़र सफ़र एराज कहलाता है। ये 3 सफ़र आज जो हम गुफ्तगू करेंगे गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक की, और आज उसी की आगे इब्तिदा करेंगे। जहाँ तक हमें वक्त मिला हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ चले तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सवारी लेके आए जिसे बुराक कहा जाता है। बुराक ये वो सवारी है जो जन्नती सवारी है। जब ये सवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, खूबसूरत चेहरे वाली, जिसके चारों कदमों पर जो नीचे मेखे पाँव जो होते हैं, उन पाँव के ऊपर पर जो मेखें लगी हुई हैं, जैसे ये घोड़ों के पाँव बनाते हैं और नीचे एक चीज़ लगा के मेखें लगाते ताकि मजबूती हो, वो जो मेखें लगी हुई हैं अल्लाह ताला ने उन मेखों को चांदी से बनाया हुआ है, और जन्नती चांदी, नूरानी चांदी, और वो चमकदार पाँव वाला खूबसूरत याकूत के सींगों वाली सवारी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखी गई कि आप इस पे सवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार होने लगे तो बुराक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का दीदार करने जा रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक मांग। तो क्या चाहता है? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज मुझ पर आप सवार होकर अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं, उसकी बारगाह की तरफ रवाना हो रहे हैं, मुझे ये अता करते हैं कि कल इसी तरह मुझ पर सवार हो के आप जन्नत में दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुझ पे सवार होकर जन्नत में दाखिल होऊंगा। आप फिर सवार होने लगे तो फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक निशानी अता कर दें, जिस निशानी को दिखाकर मैं आपको याद करवा दूंगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मंजूरी पहले से हो चुकी है। क्योंकि जन्नत का मामला होगा, हर शय इसी बात की मुंतज़िर होगी कि अल्लाह का महबूब मुझ पे सवार हो जाए, तो कहीं आप किसी और पे ना सवार हो जाएं। मुझे कोई निशानी अता कर दे, मैं आपको दिखा दूं कि मंजूरी हो चुकी है, बुकिंग यहाँ पे है, सवार मुझ पे होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बुराक के गर्दन पे रखा, और जब हाथ को उठाया तो वहाँ अलामत निशान रह गया और बुराक की गर्दन से नूर झलकने लग गया, नूर निकलना शुरू हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक इसी हालत में मेरे पास आ जाना, मैं तुझ पे सवार हो जाऊंगा, मैं तुझ पे सवार हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए। 14,000 फरिश्ते, रिवायात में इख्तलाफ है, जो ज़्यादा कवि रिवायत है उस पर बात कर रहा हूँ। 14,000 फरिश्ते दाएँ, 14,000 फरिश्ते बाएँ, 14,000 फरिश्ते आगे, 14,000 फरिश्ते पीछे। इस अंदाज में दरमियान में बुराक और बुराक पर महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए। ये अंदाज़ है मेराज का। मेरे अबुल बयान अलैहि रहमा फरमाया करते थे, लोगों मेराज का मस्जिद हराम वाला वो मंज़र तो देखो कि एक सवारी पे सवार के दाई जानिब भी नूर, सवार के बाई जानिब भी नूर, सवार के आगे भी नूर, सवार के पीछे भी नूर, जिस पे वो सवार है वो सवारी भी नूर। जब चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ नूर ही नूर है, तो बताओ कैसे मान लें कि जो बैठा है वो बशर है। बल्कि हम यूँ कहेंगे कि दाएं भी नूर, बाएं भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, नीचे भी नूर। जो सवारी है वो सवारी भी नूर, और जो सवार है ये सब तो नूर है, वो नूरुन अला नूर है। ये सब तो नूर है, वो नूरुन अला नूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ रवाना हुए। मस्जिद हराम के अंदर तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, तमाम अंबिया की। यहाँ पे एक मसला मैं अर्ज़ करता चलूँ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई। हर नबी जो नबी भी आया आके मस्जिद अक्सा के अंदर इमामत करता रहा, वहाँ का नबी था, वहीं पे उसका मस्कन था, इमामत उस नबी की हुई। ये जो आज इतराज़ किया जाता है, ईसाईयत कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत चल रही है, यहूदियत कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत चल रही है, हम कहते हैं कि हमारे नबी की नबूवत चल रही है। तो दलील क्या है कि नबूवत किसकी चल रही है, इमामत किसकी है? जो मस्जिद का इमाम हो, आप किसी भी महफिल में चले जाएं, मजलिस में चले जाएं, तो जिस मस्जिद में आप नमाज अदा करेंगे, बेशक बड़े बड़े पीराने उज़ाम वहाँ पे आए हों, जो मस्जिद की इमामत करने वाला है, जो दीगर अयाम में इमामत करता है, उस दिन भी इमामत वही करेगा। इमाम वही होता है कि इमाम बदल जाता है? नहीं। या कोई बाहर से आने वाला जो तकरीर करने के लिए आए हैं, तिलावत करने के, वो आके मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा? नहीं, इमाम वही होगा जो पहले का इमाम है। तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा के इमाम थे, और मस्जिद अक्सा सारी ज़िंदगी इमामत उन्होंने मस्जिद अक्सा में की, वफ़ात भी वहीं पे हुई। बैतुल हराम में, मस्जिद हराम में इमामत नहीं। बैतुल हराम किबला तो तब बना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आई। तो हमारे नबी कहाँ के इमाम? बेशक सारी दुनिया, सारे अंबिया के इमाम है, लेकिन इमामत की बात कर, वो कहाँ के इमाम हुए? बैत हराम के, काबा के, मक्का के। और तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा के इमाम। लेकिन जब सब के सब वहाँ पे जमा हो गए हैं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ की तरफ तशरीफ़ लाए, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करके ये वाज़े कर दिया कि जो बाकी इमाम थे उनकी इमामत ख़त्म हो गई। अब क़यामत तक जिसकी इमामत रहेगी, अगर वो ज़ात कोई ज़ात है तो रसूलुल्लाह की ज़ात है। वो सब के सब मस्जिद अक्सा के इमाम खड़े थे, इमामत उनका हक था। लेकिन इमामत का ज़्यादा हकदार वो होता है जो इमाम हई हो, जो वहाँ का इमाम हो, जो उस वक्त का इमाम हो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करके ये वाज़े कर दिया कि इस वक्त का जो इमाम हई है, जो इमाम नबी है, जो नबी हई है, वो भी रसूलुल्लाह की ज़ात है, और कुल कायनात का जो इमाम है वो भी रसूलुल्लाह की ज़ात है, वो और किसी की ज़ात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अंबिया को इमामत करवाई। और ये भी बात याद रखें, सब का अकीदा है सिवाय एक आधा फ़िरका, और वो भी देवबंदी या वहाबियों का अकीदा नहीं, वो भी इस बात के कायल हैं कि ये मेराज जिस्मानी मेराज थी। दीगर फ़ुरका कहते हैं कि नहीं, ये रूहानी मेराज थी। चले उनकी बातें, उन तक जिस्मानी पे बात कर ले, ये जिस्मानी मेराज थी। और जिस्म कभी रूह की इमामत नहीं करता, जिस्म कभी रूह की इमामत नहीं करता। क्योंकि फ़रिश्ते तो पढ़ते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ाते हैं, हदीस में आए कि फ़रिश्ते भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो रूह कब है? वो तो नूर है, रूह नहीं है। जिस्म कभी रूह की इमामत नहीं करता, रूह की इमामत करती है। जैसे आलम अरवाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अरवाहों की इमामत फरमाई। जिस्म कभी रूह की इमामत नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की मेराज, और आप मस्जिद अक्सा में इमामत पर आए, मुसल्ले पे आए, तो आप जिस्म समेत आए। तो पीछे जो अंबिया खड़े थे वो रूहें नहीं, वो भी अजसाम थे, वो भी अंबिया कराम के जिस्म थे। अब बात यहाँ पे आकर जो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी कब्र में गया तो मर के मिट्टी हो गया, जिस्म गल गया, माज़अल्लाह। अगर जिस्म गल गया तो मस्जिद अक्सा में कौन खड़े हैं? जिस्म कभी रूह की इमामत नहीं करता, पहली बात। अगर जिस्म रूह की इमामत करते हैं तो एराज तुम पे, तुम कैसे मानते हो कि नबी करीम की जिस्मानी मेराज थी? अगर जिस्मानी मेराज मानते हो तो ये भी मानो कि जो अंबिया पीछे खड़े हैं वो जिस्मों समेत खड़े हैं। और अगर ये मानते हो तो इस बात को ख़त्म कर दो कि नबी मर के मिट्टी हो जाता है। कई आदम अलैहिस्सलाम भी पीछे खड़े हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं, दानियाल पीछे खड़े हैं, नूह पीछे खड़े हैं, मूसा पीछे खड़े हैं। अगर मिट्टी बन गए थे तो पीछे क्या करने आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया
फ़नबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। फ़नबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है। युरज़कुल्लाह, अल्लाह उसे कब्र में रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के बाद बुराक पे सवार हुए और सिदरतुल मुंतहा की तरफ सैर की। सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरा क्या है? ये एक दरख्त का नाम है। ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पे है, उगा हुआ ये 7वें आसमान पे है, और 7वें आसमान से इसकी बुलंदी इतनी है कि जहाँ पे इसका एंड होता है, ख़त्म होता है, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, जहाँ सिदरा की इंतहा हो गई। ये इतना बड़ा दरख्त है, बेरी का दरख्त। इस पे जो फल लगते हैं मटकों की सूरत में लगते हैं, मटकों जैसे इसके फल हैं। यहाँ पे नूरियों की हद है, जो मलाइका है, जो जितने भी अनवार हैं, यहाँ पे उनकी हद है। इस मकाम से आगे वो नहीं जा सकते, ख़त्म। अब यहाँ ये भी बात कर लें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से आगे गए हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे क्यों नहीं गए? लौ दनऊ तो अन मिलतन लह तरकत, मैं एक पोरा भी आगे बढ़ा तो या रसूलुल्लाह पर जल जाएंगे। क्यों? आगे क्या था? नूर था। तो जिब्रील क्या है? जिब्रील क्या है? नूर है। एक बात तो पता लग गई कि नूर भी नूर जैसा नहीं होता। जो कहते हैं ना बशर है तो साढ़े वर्ग है, बशर हुआ तो हम जैसा ही है। जब नूर नूर जैसा नहीं हो सकता तो बशर बशर जैसा कैसे हो सकता है? या फिर बशर मानते हो तो मानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशरियत है वो तमाम अनवार पे बारी है, क्योंकि नूर कह रहे हैं हम जल जाएंगे और रसूलुल्लाह बशर है तो आगे जा रहे हैं। और वो जो जलाने वाला नूर है वो नूरों को तो जला रहा है, बशरियत को नहीं जलाया। या फिर ये मानो नहीं, बात क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके अंदर तीनों सिफात रखी हैं। मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक का सफ़र बशरियत का था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बशरियत के साथ मेराज की है, बशरियत के लुबादे में। यहाँ से जो सफ़र हुआ आगे सिदरतुल मुंतहा तक, वो नूर का सफ़र था, जिब्रील नूर था तो रसूलुल्लाह के साथ था। और ये नूरानियत की मेराज थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र अपने नूर के अंदाज में तय किया है। अब आगे जो सफ़र आ रहा है वो हकीकत मुस्तफ़ा का सफ़र है, और हकीकत मेराज का सफ़र है, और हकीकत नूर का सफ़र है। जिब्रील महज नूर था, वो पीछे रह गया। नबी करीम की हकीकत है इसलिए वो आगे चले गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु कहते हैं कि जिब्रील जो साथ साथ जा रहा था ये नबी करीम की मेराज थी। ये नबी करीम की मेराज नहीं, ये जिब्रील की मेराज थी कि जिब्रील साथ जा रहा है। और ये बात भी याद रखें कि कोई नबी सिदरतुल मुंतहा तक नहीं गया, कोई नबी नहीं गया। सिदरतुल मुंतहा से पीछे रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा से आगे कोई नहीं, बल्कि सिदरतुल मुंतहा तक भी कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उरूज पाया है और चौथे आसमान तक, बस। इस चौथे आसमान से ऊपर कोई नबी नहीं गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, अहकाम लेने के लिए सिदरतुल मुंतहा तक जाते थे। उस हद पे खड़े होके ऊपर से हुक्म आते थे, उन अहकाम को लेके बारगाह नबुवत में हाजिर होते थे। और यहाँ पे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिब्रील को देखने गए थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने गए थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को ही देखने जाना था तो वो सुबह शाम दिन दोपहर हर वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में होता है, वो तो देख लेते, वो तो देख लेते। या यूँ कह लें कि जिब्रील नबी करीम, यहाँ भी ये भी एतराज़ है कि जिब्रील जब भी आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहकाम लेके आया है, आयतें लेके आया, कुरान की आयतें लेके आए। जिब्रील का आना कितना साबित है? 24,000 मरतबा जिब्रील आया है, 24,000 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अगर ये भी मानो ना कि हर बार जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं एक आयत लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी एक आयत लेके आए हैं, कभी 5 आयत लेके आए हैं, कभी पूरी पूरी सूरत भी नाजिल हुई है। लेकिन अगर इतना मान लो कि जिब्रील किसी वजह से ही आए हैं, हुक्म के वजह से ही आए हैं, तो कुरान की 6,666 आयतें बनती हैं। तो जिब्रील 6,066 मरतबा आ गया। जो इससे ज़्यादा है वो किस लिए आया? वो किस लिए आया?
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور جو بار بار رسول اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے انہوں نے سدرۃ المنتہا پہ جا کے زیارت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ وہیں پہ زیارت کریں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی زیارت کے لیے نہیں گئے، بلکہ جبریل نے ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں عرض کی، یا اللہ آج میں تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا جبریل جا زیارت کر لے، حتیم میں لیٹے ہوئے۔ عرض کی یا اللہ اس طرح نہیں، میں اپنے انداز میں، اپنے حلیے میں، اپنی ادا میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا اپنی ادا میں چلا جا۔ اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو بشر کی صورت میں نہ آئے، داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نہ آئے۔ 3 لاکھ پروں کو کھولا ادھر، 3 لاکھ پروں کو کھولا ادھر، نور کا لبادہ ظاہر کر دیا، جبرائیل کا نور چمکنے لگا، جبل ابو قبیس پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ حتیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہیں، میں حتیم میں داخل ہوں۔ جب آگے بڑھے تو قدم پیچھے کر لیا، پھر آگے بڑھے پھر قدم پیچھے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاتا کیوں نہیں؟ جبریل جب اجازت لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے دل پہ القاء کر دیا، محبوب اپنی چادر کو اتار دو۔ محبوب سوئے ہوئے ہیں، محبوب اپنی چادر کو اتار دو۔ حدیث کی روایت جب تشریح کروں گا پھر سمجھ آ جائے گی یہ کون سی چادر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا حتیم میں لیٹے رہے، چادر کو اتار دیں۔ جبرائیل آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اپنی خاص ادا، اپنے جسم میں، اپنے انداز میں آ رہا ہے، اپنے نور کو ظاہر کرتے، پروں کو کھول، 3 لاکھ پر دائیں جانب کھولے ہیں، 3 لاکھ پر بائیں جانب کھولے ہیں، ایک پر کی وسعت کے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ جبرائیل اس انداز میں نبی کریم کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، جب پاؤں کو آگے کیا پھر پیچھے کیا، پھر قدم بڑھا پھر پیچھے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حتیم میں محبوب لیٹا ہے، جا جا کے زیارت کر لے۔ عرض کی یا اللہ جبریل اس جبل ابو قبیس سے آگے کیسے بڑھے؟ وہ نور جو سدرۃ المنتہا سے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا آج جبل ابو قبیس سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ وہ نور جو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا آج وہ نور جبل ابو قبیس سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ کیوں؟ وہاں پہ حقیقت کا نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے اندر حقیقت کا نور رکھا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا محبوب کملی کو اتارو، چادر کو اتارو، وہ جو اوپر چادر لے کے لیٹے تھے اس چادر کی بات نہیں تھی کی، فرمایا محبوب بشریت کی چادر کو اتارو، حقیقت کے نور کو ظاہر کر دو، جبریل تیری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ تھا وہ انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حقیقت کے عالم سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا مَرَّ عَلَى سَائِرِ أَسْمَاءِ حضرات الاسماء الالہیتی، میں جب حقیقت کے عالموں سے گزرنے لگا تو مجھے صدائیں آنے لگی، ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد۔ یہاں پہ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ چھٹے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے کہ میں دیدار کے لیے جا رہا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سلام بھی لیتے چلیے۔ اب یہاں پہ بات کر لے کہ تمام کے تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، نبی نے امامت کی، براق پہ سوار ہوئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ پھر پیچھے کھڑے ہیں، وہاں مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ، یہاں چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ۔ یہاں پہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی رفتار تمہارے نبی سے تیز ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کرائی تمہارے نبی نے، چھٹے آسمان پر پہنچا تو آگے ہمارا نبی کھڑا ہے، تمہارا نبی بعد میں پہنچا، ہمارا نبی پہلے پہنچا ہے۔ ہم آسان سا جواب دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا نبی گیا تھا نبوت کی رفتار سے، ہمارا نبی گیا ہے براق کی رفتار سے، نبوت کی رفتار سے نہیں۔ اور دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نبی کی نبوت کی رفتار؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ادنو منی یا خیر البریہ، اے خیر بریہ، کائنات سے بہتر شخص ذرا میرے قریب ہو جا۔ اس ایک آواز پہ ایک قدم کو اٹھایا اور کتنی وسعت کی کہ میں نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے آگے جب یہ آواز آئی تو میں نے ایک قدم کے اندر یہ سارے کا سارا سفر طے کر لیا۔
एक कदम के अंदर दूसरी आवाज़ उदनु मिन्नी या अहमदू, मैंने दूसरा कदम उठाया तो पहले कदम समेत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और पहले कदम समेत जितना सफ़र तय किया था, इस सबसे ज़्यादा सफ़र दूसरे कदम में तय कर लिया। फिर आवाज़ आई उदनु मिन्नी या मोहम्मद, तीसरी आवाज पर जब कदम उठाया तो दोनों कदमों की सफर को मिलाते हुए जितना सफर बनता है मैंने तीसरे कदम पे उतना सफर तय कर लिया। ये आवाजें अल्लाह ताला ने मुझे 1000 मर्तबा दी, मैंने 1000 कदम उठाए हैं। और सोचो तो सही कि नबी इन कदमों पे अपने रब के कितना करीब हुआ होगा। लेकिन आखिरी मर्तबा फिर अल्लाह ने फरमाया किफ या मोहम्मद, ए मोहम्मद यहाँ पे रुक जा। यहाँ पे एक बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 1000 कदम और भी उठा लेते तो अल्लाह के करीब ना हो सकते थे। उसकी वजह कि बंदा जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये हमें इससे सबक मिलता है कि बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने रब के करीब होने की, वो अपने रब के करीब नहीं हो सकता। किफ या मोहम्मद दना फतदल्ला, फिर वो नीचे आया। इस वजह से ये मेराज क्यों हुई कि जब तक अल्लाह ताला खुद महबूब के करीब ना होते महबूब खुदा के करीब नहीं हो सकता था। ये बंदगी है, उधर खुदाबंदी है। जितना मर्जी आप सरकार आगे जाते और जब सरकार का ये आलम है तो तेरी मेरी क्या औकात है। सुम्मा दना, फिर ये ऊपर हुआ, फतदल्ला, फिर वो नीचे आया। इसने कुर्ब किया, उसने कुर्ब दिया। जब तक अल्लाह का फजल ना होता तब तक महबूब सफ़र तो करता रहता, लेकिन अल्लाह का कुर्ब ना हासिल कर सकता। अल्लाह का कुर्ब कब हुआ कि जब अल्लाह करीब हुआ। फतदल्ला, फतदल्ला का फ़ाइल अल्लाह ताला, दना का फ़ाइल नबी करीम। अगला जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह ऐथों ही आसमां का जहान, अफ़आल का जहान, इल्म के पर्दे, हिलम के पर्दे, इंशाअल्लाह ये जितनी भी बातें हैं तो ये बातें हैं जो कहने से समझ नहीं आ रही, बस बयान करते चले जाओ। आप 10 घंटे भी लगे रहे ना तो मेराज को बयान नहीं कर सकेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वक़्त जो उलमा लिखते हैं आधा घंटा भी नहीं है। आधे घंटे के अंदर भाई घर से चले हैं, वापस आए हैं तो बिस्तर भी गर्म है। जिस कुंडी को खोल के गए हैं, दरवाजे को खोला, कुंडी जो खोली है वो कुंडी भी हिल रही है। जिस पानी से वुज़ू किया है, पानी जब गिरता है तो पानी चलता रहता है, वो पानी भी चल रहा है। उलमा लिखते हैं कि आधा घंटा भी नहीं लगा, 17,000 बरस भी गुजारे हैं, 7 आसमान भी गुजरे हैं, सब कुछ हुआ है। आधे घंटे से पहले वापस भी आए हैं। और हम मौलवी लोग बयान करते पता नहीं 20 घंटे लगा देते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मौजज़ा है कि आधे घंटे का सफ़र, हालांकि सफ़र हो ना 10 दिन का तो बंदा 5 मिनट में बयान कर, भाई यहाँ से गए फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे गए, 5 मिनट के अंदर बयान कर दे, भाई ये था, ये 10 मिनट का सफ़र। लेकिन नबी का सफ़र आधे घंटे का भी नहीं है और हम 10 घंटे भी लगा फिर भी पूरा नहीं होता। इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक इसकी वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए।